وقت کی یہی تو طرفہ کاری ہوتی ہے، کہاں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت گزر ہی نہ رہا ہو، رکا ہوا ہو، اور پھر کھٹ سے کویا ایک زکن بھرتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے ابھی کل ہی کی تو بات ہے۔ اطفال گھر نامی اس ادارے کے روح رواں ملک کے ایک معروف سماجی شخصیت حاجی محمد اسحاق تھے۔ ہم نے انہیں پہلی بار دیکھا، درمیانہ قد، باریک چہرہ، سادہ لباس، اپنی وضاحت سے وہ پرہیزگار اور متقی انسان نظر آتے تھے۔ اس روز بڑے بچوں کی چھانٹی ہو رہی تھی، ان میں بڑی بچیاں بھی شامل تھیں۔ ان کا باقاعدہ الگ رجسٹر تیار کیا جا رہا تھا اور نئے سرے سے اندراجات ہو رہے تھے، اور یہ ساری کارروائی حاجی محمد اسحاق کی موجودگی میں ہو رہی تھی، اور ان کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ یہ ایک ہال کمرہ تھا، پہلے بڑے بچوں کو نپٹایا جا رہا تھا۔ ایک صوفے پر حاجی صاحب براجمان تھے، ان کے چہرے پر موٹے سیاہ فریم کی اینک چڑھی ہوئی تھی۔ انہوں نے خود بھی ایک ڈائری اپنی کوٹ میں کھول کر رکھی تھی۔ ان کے بائیں ہاتھ پر بڑی سی میز تھی، وہاں ایک پختہ عمر کا شخص بیٹھا تھا، اس نے ایک بڑا سا رجسٹر کھول رکھا تھا۔ یہ مشتاق صاحب تھے، حاجی صاحب کے سیکرٹری۔ ان کے ساتھ والی کرسی پر آپا جی براجمان تھی، انہوں نے بھی ایک ایسا ہی رجسٹر کھول رکھا تھا۔ ایک عمر رسیدہ خاتون کے علاوہ 2 اور افراد بھی تھے۔ ہر لڑکے کا باری باری نام پکار کے بلایا گیا، پھر حال میں میرا نام بھی پکارا گیا۔ میں آگے بڑھا، ایک شخص جو پمائش وغیرہ کر رہا تھا میرے قریب آ گیا، وہ مجھے ایک قریب کی دیوار کی طرف لے گیا، پھر بآواز بلند میرا اندراج ہونے لگا۔ عام لڑکوں کے مقابلے میں میرا ڈیل ڈول غیر معمولی تھا۔ پھر مجھے جانے کی اجازت مل گئی۔ یہ عمل لگ بھگ صبح 10 بجے شروع ہوا اور 1 بجے تک نپٹا لیا گیا۔ حاجی صاحب اپنی لمبی سی گاڑی میں چلے گئے۔ آبدہ نے بھی خوب رنگ روپ نکالا تھا، کتابی چہرہ، ستواں ناک، حسن دل آرام میں معصومیت کی آمیزش، بڑی بڑی گجراری آنکھیں، بال گھنے اور ہلکے بھورے مائل، سروقد اور متناسب جسامت۔ میں اگر اپنے ڈیل ڈول اور وجاہت کے لحاظ سے اپنے لڑکوں کے گروپ میں نمایاں تھا تو وہ بھی اپنی غیر معمولی خوبصورتی اور پرکشش شخصیت کے باعث لڑکیوں میں ممتاز تھی۔ یہ عجیب اتفاق کی ہی بات تھی کہ جس روز حاجی صاحب آئے تھے اس روز ہمارے گروپ بندی بھی کر دی گئی تھی، جس کے مطابق ہم جوان لڑکوں کا گروپ کا مانیٹر مجھے بنایا گیا تھا، جبکہ لڑکیوں کے گروپ کی لیڈر آبدہ کو بنایا گیا تھا۔ وہ اپنی عمر کے 16ویں برس میں قدم رکھ چکی تھی۔ آبدہ تو میرے بچپن کی پسند تھی اور میں بھی اسے اتنا ہی پسند تھا۔ بلال اور اشرف میرے قریبی دوست تھے، مگر ان دونوں کا مزاج مجھ سے مختلف تھا۔ بہرحال کوئی تو وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم تینوں میں گاڑی چھنتی تھی۔ آپا جی کی زبانی ہمیں پتا چلا کہ بہت جلد حاجی صاحب دوبارہ دورے کے لیے اطفال گھر آنے والے ہیں۔ اس بار ان کے دورے کی وجہ بہت عام تھی۔ آپا جی کے اس اعلان کے بعد لڑکوں ہی میں نہیں لڑکیوں میں بھی ایک بے چینی اور سنسنی پھیل گئی، ایک افواہ سی تھی جو گردش کرنے لگی تھی۔ مثلاً اس بار حاجی صاحب جوان لڑکوں اور لڑکیوں کے مستقبل اور اگلے ٹھکانے کا بندوبست کریں گے، یا پھر انہیں اطفال گھر سے کسی طریقے سے بے دخل کر دیا جانے والا تھا، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ظاہر ہے اب ہم اطفال نہیں رہتے۔ یار سچی بات ہے، میرا یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہتا، بلال نے کہا تو اشرف اس کی تائید میں بولا، کہتا تو ٹھیک ہے، اب یہاں رہنے کی ہمیں عادت سی ہوگی۔ بلال دبلا پتلا اور دبے ہوئے قد کا لڑکا تھا، جبکہ اشرف نسبتاً لمبے قد کا اور میری طرح کثرتی بدن کا مالک تھا۔ تو کیا کہتا ہے شہزی؟ اشرف نے مجھے ٹہوکا دیا، اس کی رنگت بھی سانولی تھی۔ دونوں ہر وقت دوسرے گروپ کی لڑکیوں ہوئی کے بارے میں باتیں کرتے رہتے تھے، تاہم آبدہ کے سلسلے میں محتاط رہتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ میری پسند ہے۔ میں نے کہا یار زندگی عمل کا نام ہے، ہمیں اب اطفال گھر کے پنگوڑے سے نکلنا چاہیے، اپنے زور بازو پر کام کرنا چاہیے، مجھے اب یہاں مزہ نہیں آتا۔ میری بات پر بلال بولا، ابے باہر کی زندگی بڑی مشکل ہے، یہاں مزے میں ہے، فکر نہ فاقہ، عیش کرے گا کاکا۔ صحیح، اشرف بھی اپنے مخصوص لہجے میں اس کی تائید میں کہتا ہوا بولا، کھانا پینا نہانا سونا سب فری، چھوٹا موٹا کام کرنے پر خرچی بھی مل جاتی ہے، چوکیدار کے ہاتھ میں چند نوٹ تھما کر باہر کی دنیا بھی گھماتے ہیں، بس لڑکیوں کے معاملے میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، ورنہ تو نغمانہ، سمرین اور نشین بھی ہمارے ساتھ باہر جانے کو تیار ہے۔ یار شہزی تمہارا دل نہیں کرتا آبدہ کے ساتھ باہر نکلنے کو؟ اشرف آخر میں مجھ سے کہتا، یہ بدو ہے، کسی لڑکی کو باہر کیا لے کر جائے گا، خود تو پہلے باہر نکل کر دکھائے۔ بلال نے مجھ پر طنز کیا تو میں نے کہا، خاطر جمع رکھو، اب تمہارے یہ سارے مزے ختم ہونے والے ہیں، عنقریب حاجی صاحب ہمارے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے والے ہیں، اب ہم یہاں رہنے کے اہل نہیں رہے ہیں، اس کا حل بھی ہم نے سوچ رکھا ہے۔ اشرف مانی خیز لہجے میں بلال کی طرف دیکھ کر رازدارانہ انداز میں مسکرایا، گویا بلال بھی اس کا رازدان تھا، مگر میں چونک گیا۔ کیسا حل؟ اگر اس بڈھے کھڑوس نے ایسا کوئی فیصلہ کیا بھی تو ہم بائیکاٹ کر دیں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے۔ بلاخر اشرف نے کہا، حاجی صاحب کے بارے میں ان کا یوں مذاق اڑانا مجھے سخت ناگوار گزرا تھا، مگر انہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ تھا، میں چپ رہا۔ اطفال گھر میں لڑکوں اور لڑکیوں سے ملنے کی سختی سے ممانعت تھی، مگر پھر بھی ہم تینوں چھپ چھپا کر یہ کام کر جاتے تھے۔ اشرف اور بلال کی تو کئی لڑکیوں سے دوستی تھی، لیکن میں صرف آبدہ ہی سے ملتا تھا، اب وہی میرا سب کچھ تھی اور میں اس کا۔ اس معاملے پر وہ بھی کچھ متوحش اور فکر مند تھی۔
उस रोज जब हम खिड़की के रास्ते चोरी छुपे बातें कर रहे थे तो उसने अपने खदशे का इजहार मुझसे किया। शाजी, मैंने सुना है हमें अब यहाँ से निकाला जाने वाला है। सुना तो मैंने भी यही है, लेकिन कम से कम लड़कियों के लिए ऐसा कोई फैसला नहीं किया जा रहा। मैंने कहा, लेकिन तुम? उसकी आंखों में उतरी हुई बेचैनी और तशवीश मेरे नाम की थी। मैं उसकी बेकरारी उसकी आंखों से भाप गया। तुम क्यों परेशान होती हो? मैं भला तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मैं उसकी तरफ देख कर मुस्कुरा। वो भी मुस्कुराती। उसकी मुस्कुराहट में अब एक तमानियत का एहसास था। हम थोड़ी देर बातें करते रहे। सलाखों वाली खिड़की के रास्ते में उसके नरम नरम हाथों को सहलाता रहा, फिर अपने पोर्शन की तरफ लौटा। उन माहौसाल ने सरमद बाबा से भी खराज वसूल किया था। वो और ज्यादा ज़ईफ और कमजोर हो गए थे, ताहम खुद को फिट रखने के लिए वो रोजाना वाक करते थे। उस सिलसिले में मैंने सरमद बाबा से भी जिक्र किया था कि उनके ख्याल के मुताबिक हाजी साहब हमारे बारे में क्या फैसला करने वाले थे। जाहिर है वो भी क्या सराई के अलावा और क्या कर सकते थे। उन्हीं दिनों एक अजीब वाकया पेश आया। हम लड़कों को तालीम के साथ साथ हुनर वगैरह भी सिखाया जाता था ताकि हम अमली मैदान में भी कदम रख सकें। उस मकसद के लिए हमें मुख्तलिफ टोलियों में बांट कर मुख्तलिफ कारखानों और फैक्ट्रियों में भी काम पर ले जाया जाता था। हमारे 2 लड़कों की टोली में बिलाल शामिल था, जबकि अशरफ दूसरी टोली में था। वहां से हमें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। हम एक टेक्सटाइल मिल में काम करते थे। उस रोज हम शाम गए वापस लौटे। मैं हर रोज आपदा से ही नहीं सरमद बाबा से भी जरूर मुलाकात करता था। उस शाम आपदा से खिड़की में मुलाकात करने के बाद जब मैं सरमद बाबा से मिलने पहुंचा तो हमें एक चौंका देने वाली खबर मिली। आज सुबह कोई खातून 2 बच्चों के साथ अतफाल घर आई थी और सरमद बाबा को अपने साथ लेकी थी। मुझे तशवीश हुई। मैं उलझा सा आपा जी के ऑफिस में आया, मगर वो आराम करने के लिए अपने पोर्शन में जा चुकी थी। नाचार में वापस अपने कमरे में लौट आया। मैं एक तजस्सुस अमेज उलझन का शिकार था। बाबा ऐसे कैसे चले गए? वो औरत कौन थी? शायद उनकी जानने वाली हो, मगर वो कम अज कम मुझे तो बता कर जाते। ऐसे कैसे चले गए थे वो? ताम ये खुशी की बात भी थी कि चलो बाबा जी जहां गए होंगे अपनी खुशी से ही गए होंगे। भला मेरा उनके साथ रिश्ता ही क्या था? अब तक अतफाल घर में ऐसा होता आया था, लेकिन आते जाते ही रहते थे। ये कोई अनोखी बात ना थी। बहर तौर मैं खुश भी था कि चलो बेचारे अपनों में ही गए होंगे। शायद उन पर किसी को रहम आ गया हो। अब आखिरी उम्र अपनों में गुजारेंगे। इंसान के दिल में नहीं, सोच और जहन में भी एक तरह की नजाकत होती है। इंसान को समाजी दरिंदा ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये अपने जैसे इंसानों में मिलजुल कर रहना पसंद करता है। अतफाल घर में भी हम सब मिलजुल कर रहते आए थे। कई लोगों से पुरानी उनसियत भी हो गई थी। कोई अचानक साथ छोड़ देता तो दुख सा होता। यही सबब था कि सरमद बाबा के यूं चले जाने से मैं भी उदास था, आपदा भी उदास थी। हालात इशारा कर रहे थे कि अतफाल घर के हालात बदलने वाले थे। उसका अंदाजा उस चांद का खबर के बाद हुआ जिन दिनों हाजी साहब ने अतफाल घर का दोबारा दौरा करना था और बड़े बच्चों और बड़ी बच्चियों से मुताल्लिक हतमी फैसला आना था। उसके एक रोज कबल उनका एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। फिर तो जैसे पूरे अतफाल घर में खलबली सी मच गई। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, हत्ता के इदारे के अमले के अफराद भी हाजी साहब की अचानक मौत पर परेशान और तशवीश ज़दा हो गए। एक सवालिया निशान था जो हर एक के हल्क में गोया आंकड़े की तरह अटक कर रह गया था कि अब क्या होगा, अब उस इदारे का वाली वारिस कौन होगा, और अब जो होगा वो कौन होगा, कैसा होगा, वगैरह वगैरह। क्योंकि हाजी साहब की जिंदगी में हर कोई बहुत खुश और आराम सुकून से था। बेचारे बूढ़ों को ज्यादा अपनी फिक्र हो रही थी कि पता नहीं अब उनका इस उम्र में क्या बनने वाला था, जबकि आपा जी को बच्चों की फिक्र सता रही थी और जवान लड़कियों की भी, जबकि हम नौजवान उससे फिक्र और तशवीश से कदरे आजाद थे, क्योंकि अब हमने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया था। ताम एक बेनाम सा तजस्सुस था कि अब क्या होने वाला था। उस इदारे में अब जो कुछ होने वाला था वो हमारी सोच से भी ज्यादा मकरू, करीहा और भयानक था। हाजी साहब की मौत के बाद सब कुछ एकदम ही बदला था। अतफाल घर की चूंकि एक अलग दुनिया थी, बहुत आरामदेह और पुरसकून जगह, जैसे यहाँ किसी मेहरबान और रहम दिल बादशाह की हुक्मरानी हो, मगर अब जैसे कोई सख्त गिर हुक्मरान ने उसकी बागडोर संभाल ली थी। बहुत वाज़ेह तब्दीली देखने में आने लगी, जैसे कोई हमारी उस पुरसकून और आरामदेह और पुरअमन दुनिया पर गाज़बाना कब्जा करना चाह रहा हो और जल्द से जल्द अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश और जुस्तजू में हो। सबसे पहले अमले के वो लोग रफ्ता रफ्ता तब्दील किए गए, पाइलफाज दीगर निकाले जाने लगे जो अरसे से यहाँ काम कर रहे थे। उनकी जगह अजीब व गरीब सूरतों वाले अफराद ने ले ली थी। चंद औरतें भी थी जो उन्हीं मर्दों की तरह कराट सूरत थी। आपा जी तो उस तरह गायब कर दी गई कि जैसे कभी अतफाल घर में उनका वजूद ही न रहा हो। हालांकि वो सब बच्चों की मां कहलाती थी और हम सब भी गोया उनकी गोद में खेल कर जवान हुए थे। एक खौफ की फिजा थी जो उस इदारे पर धीरे धीरे तारी होती जा रही थी। हर कोई जैसे अपने इर्द गिर्द के माहौल से डरा डरा और सहमा सहमा हुआ था, जैसे अभी कुछ होने वाला था। बिलखुसूस जवान लड़कियों का ग्रुप ज्यादा मुतवहिश और सरा सहमा था, जो हमसे ज्यादा खौफ और तशवीश अमेज बेयकीनी का शिकार थी। बिलखुसूस साहब था, मगर उसकी निगाहें मुझ पर थीं, जबकि खुद मेरी अपनी दिलो दिमाग की कैफियत अगरचे उन सब से मुख्तलिफ न थी, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में खौफ की जगह परेशानी और तफक्कुर था।
ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ कुछ गलत हो रहा था या होने वाला था। अमले के नाम पर जो अफराज यहाँ मुतय्यन किए गए थे वो हमें हमदर्दी की निगाह से कम, कसाई की नजर से ज्यादा देखा करते थे। उनकी सूरतें भी ऐसी थीं कि देखकर खौफ आता था। सबके सब हट्टे कट्टे, मुश्तंडे और छठे हुए बदमाश नजर आते थे। यही नहीं, हमें उनके पास असलहे की झलक भी नजर आई थी। आपाजी की जगह जो औरत आई थी वो शक्ल सूरत से उन्हीं के कबील की नजर आती थी, नहायत काली, मोटी और भद्दी। मगर यहाँ का सारा निजाम बल्फाज दीगर एक लहीम शहीम और स्याह रंगत के हामिल शख्स के हाथ में था। वो उन सब का सरगना था। बाद में हमें उसका नाम मारूफियत के मालूम हुआ जो उसकी शख्सियत से हम आहंग था। दिलशाद खान उर्फ उस्ताद गुग्गुल। वो हमें ऐसे नजरों से घूर कर देखा करता था जैसे हमें नजरों ही नजरों में तोल रहा हो। हमें अब काम पर भी नहीं भेजा जाता था, ना ही बाहर ले जाया जाता था। गेट और चार दीवारी के ऊपर खार तार बाड़ नस्ब कर दी गई थी। पैरे पर उन्हीं के बदमाश सूरत आदमी रहा करते थे। टीवी, पढ़ना लिखना, किताबें और ऐसी दीगर मेहरबान चीजें अनका की जा चुकी थी। बूढ़ों को तो इब्तदाई चंद दिनों में ही निकाल बाहर किया गया था। अलबत्ता बच्चे और हम लड़के लड़कियां अपनी तादाद में मौजूद थे। मुझे दाल में काला ही काला नजर आना शुरू हो गया था। यह अतफाल घर अब अतफाल घर न रहा था, गोया एक जेल खाना बंद कर रह गया था, या फिर ओहबाश और गैंगस्टर लोगों का अड्डा। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र आपदा की होने लगी थी। उस सूरत हाल से वो बहुत ज्यादा खौफजदा और मुतवहिश थी। एक दिन मैंने यूं ही गेट से बाहर निकलना चाहा तो वहां मुतय्यन एक खरांड सूरत पहरेदार ने मुझे खूनखार लहजे में झिड़क दिया और तंबीह भी कर डाली कि मैं दोबारा उनकी इजाजत के बगैर गेट से बाहर तो जा, गेट के करीब भी आने की जुर्रात न करूं। अब मेरी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजाना शुरू कर दी थी। हमें हाल कमरे में हर वक्त बंद करके रखा जाने लगा था। कोई हम कैदी हूं। मैं आपदा से मिलने के लिए बेचैन था, मगर कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक रोज मैंने सब लड़कियों के पोर्शन का चोरी छुपे रुख किया तो ऐन उस वक्त जब मैं पोर्शन की दीवार वाली मतलूबा खिड़की से चंद कदमों के फासले पर था कि मेरी कमर पर चाबिक पड़ा। मैं दर्द और अजियत से बुलबुला कर रह गया। एक सुर्ख लकीर थी जो मेरी पीठ पर नमूदार हो गई थी, जिसकी जलन में कई दिनों तक सहता रहा था। अब मुझे एहसास हो गया था कि अतपाल घर अब बर्दा फरोशों का अड्डा बन चुका था। हमसे बेगार लिया जाने लगा। हमें सुबह सवेरे एक बंद कंटेनर वाले ट्रक से किसी नामालूम मकाम पर ले जाया जाता, वहां पत्थर कूटने का सख्त काम लिया जाता, तो कहीं ईंटों के भट्टे पर सख्त कोशिश करवाई जाती। मैं तो खैर उन सख्तियों को झील रहा था, मगर बिलाल और अशरफ की हालत से ज्यादा पतली हो रही थी, क्योंकि वो दोनों आराम तलब थे। ये सख्तियां झीलना उनके बस की बात न थी। यह भी इंकिशाफ सुनने में आया कि छोटे मासूम बच्चों से भीख मंगवाने का भी काम लिया जाता था। उन्हीं दिनों मैंने बिलाल और अशरफ को भी साथ मिलाया कि हमें यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। उसकी हमने बाकायदा मंसूबा बंदी की। मेरा इरादा सबको यहाँ से आज़ाद करवाने का था, मगर अशरफ और बिलाल ने इख्तिलाफ किया कि यह भी मुश्किल होगा। लिहाजा फिलहाल पहले खुद आसानी के साथ उस जहन्नुम से फरार हुआ जाए, उसके बाद बाहर निकलकर पुलिस से मदद ली जा सकती थी। उसकी बात में वजन था। मैंने इख्तिलाफ नहीं किया, मगर मैं आपदा को उन भेड़िया सिर्फ लोगों के रहमो करम पर छोड़ कर नहीं जा सकता था। लिहाजा मैंने बिलाल और अशरफ से उस बारे में साफ साफ कह दिया। वो कुछ सोच कर राजी हो गए। गोया जान जोखिम में डालकर एक दिन चोरी छुपे मैंने आपदा से खिड़की की तरफ मुलाकात कर ही ली और उसे अपने मंसूबे के बारे में बताया। साथ ही उसने भी कई लज़ाखेज इंकशाफात करते हुए मुझे ये बताकर जानलेवा तशवीश में मुब्तला कर डाला कि ये बदकिरदार लोग उन पर भी बुरी निगाह रखे हुए हैं और उस मकसद के लिए वो चंद जवान लड़कियों को जाने किधर गायब भी कर चुके हैं। शनीद थी कि पहले उन मासूम लड़कियों को उन्होंने अपनी हवस का निशाना बनाया, उसके बाद कहीं फरोख्त कर डाला था। आपदा की जुबानी ये सब सुनने के बाद मैंने उसे लेकर यहाँ से फरार होने का पुख्ता अज़म कर लिया था और कसम खा ली थी कि चाहे जान चली जाए अपने इरादे से हरगिज बाज नहीं आऊंगा। शाजी, मुझे अब यहाँ बहुत डर लगने लगा है। सब बताने के बाद आपदा खौफ से लरजते लहजे बोली। खिड़की की ठंडी ठार सलाखों से उसने अपना मरमरी हाथ निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिया। उसके नरम नाजुक हाथ की कपकपाहट ने जैसे मेरे वजूद तक को लर्जा कर रख दिया था। मैंने उससे तसल्ली दी। वक्त कम था, कसाई सूरत कोई पहरेदार हमें खिड़की से यूं बातें करते हुए देख सकता था। आपदा, तुम हौसला रखो। अब तुम ही मेरी हिम्मत और मेरा अज़्म हो, जिसके बल बोते पर आज रात ही मैंने तुम्हारे साथ इस जहन्नुम से फरार का मंसूबा बनाया है। मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ। मेरी बात पर उसकी काजल आंखों में सिमटी हुई जरा सहम की कदरें मान पड़ी। वो बोली, क्या वाकई तुम सच कह रहे हो शाजी? लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा? या आप इन खौफनाक सूरत वाले सफाक पहरेदारों ने तो एक दूसरे से बात तक करने पर पाबंदी आयद कर रखी है। उसके लहजे में गैर यकीनी दर आई थी। मैंने अजराए तशफी कहा, मुझे भी मालूम है, लेकिन हमने सारी प्लानिंग कर ली है। यहाँ तक भी आन पहुंचा हूं तो ये भी हमारी मनसूबाबंदी का एक हिस्सा है। हम कौन? क्या और भी? हाँ, बिलाल और अशरफ भी मेरे साथ हैं, मगर हमारे हाल कमरे का दरवाजा तो लाक होता है।
ये काम अशरफ बासानी कर लेगा। उसे बंद ताले खोलने का हुनर आता है। क्या? पहली बार आबदा के चेहरे पर खुशी की उम्मीद चमकी थी। बस अब मैं चलता हूँ, अभी किसी से अंदर जिक्र मत करना। एक बार बाहर निकल जाएं तो यहाँ फंसे हुए सब लोगों को आजाद करवा लेंगे, मैंने कहा और फिर उसका नाजुक हाथ थपथपाकर अपने पोर्शन में आ गया। हम तीनों हाल के कोने में अपने बिस्तरों पर बैठे थे। तसल्ली करवा आए हो आबदा को? बिलाल ने कहा। मैंने इस बात में सर हिलाया। अशरफ अजीब से मुस्कुराहट से बोला, बेचारी आबदा, मेरा ख्याल है उसे तुम्हारी मुहिम जोई का यकीन नहीं आ रहा होगा। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है, मैंने चुभती हुई मुस्कुराहट के साथ ताईदन कहा। वो फिर अजीब से अंदाज में हंसा मगर बोला कुछ नहीं, मगर मैंने उसकी तसल्ली करवा दी। फिर तशवी तलब अंदाज में बारी बारी बिलाल और अशरफ की तरफ देख कर बोला, यार तुम दोनों को क्या लगता है हम चारों बासानी आज रात निकल जाएंगे यहाँ से? हमारा मंसूबा बेदाग है, तुम क्यों फिक्र करते हो? बिलाल ने बेपरवाही से कहा। सिर्फ ताले खोलने की बात है, वो मेरे जिम्मे है। बस तुम और आबदा वक्त का ख्याल रखना, 1 मिनट भी जाया मत करना। तुम्हें मालूम है ना क्या करना है तुम्हें? बिल्कुल याद है, मैंने जोश से कहा। मुझे सिर्फ यह करना था कि रात के एक मुकर्रा पहर में लड़कियों के पोर्शन की तरफ जाकर आबदा को निकालना था। बकौल अशरफ के वो उससे जरा देर कबल उस तरफ जाकर लाख खोल देगा, फिर बिलाल से जा मिलेगा जो इमारत की 4 दीवारी के जनूबी समत वाले उस दरवाजे पर जोर आजमाई करना चाहता था जहां से रोजाना कचरा उठाने वाली ट्रैक्टर ट्राली अंदर दाखिल होती थी। वहां सिर्फ एक ही पहरेदार था जो गाहे बगाए गश्त के दौरान बीड़ी या ठरा पीने के लिए जरा फासले पर बनी एक कोठड़ी का रुख करता था। वहां 3 मजीद पहरेदारों की रहायश थी। यही वो मौका होगा जब बिलाल या अशरफ दरवाजे पर जोर आजमाई का इरादा रखते थे। फरार का यह मंसूबा खालिस्तन बिलाल और अशरफ ही का तरतीब करता था। मुझे सिर्फ अपने हाथ पांव हिलाना थे। गालिबन ये पहला मौका था कि मैं किसी बात पर उनसे मुत्तफिक हुआ था, वरना तो मैं पहले ही यह जिक्र कर चुका हूं कि मेरी उन दोनों से सोच मिलती ही नहीं थी, बल्कि जमीन आसमान का फर्क था। ना सिर्फ सोच बल्कि मिजाज और फितरत के हवाले से वो दोनों एक थे, और एक फितरत भी। जब से अतवाल घर के हालात तब्दील हुए थे, मैंने महसूस किया था कि उस माहौल से बिलाल और अशरफ के मिजाज और अतवार में कुछ ऐसी तब्दीली रुनमा हुई थी जिसे मैं आसानी किसी हमायत या तायद से तशबीह दे सकता था। मतलब ये था कि वो उस बदलते माहौल से खुश थे। उसका अंदाजा मुझे तब हुआ जब दोनों ने कसाई सूरत पहरेदारों और बिलखसूस उस्ताद गूगल के साथ राह और रस्म बढ़ाने की कोशिश चाही थी। बिलाल और अशरफ ने उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश के साथ उनका बंदा बेदाम या वाज़े अल्फाज में उनका कार परदार बनने का इशारा दिया था। मेरे नजदीक ये ज़मीर फरोशी और अपनी इज्जत नफ्स से अपनी आज़ादी को एक जाबर और मुतलिकुल अनान आदमी के पास गिरवी रखने के मुतरादिफ था। ये महसूस करके मुझे उन दोनों से नफरत सी होने लगी थी, मगर मैंने अभी उसका दोनों के सामने इजहार नहीं किया था। मुमकिन था कि मैं गलती पर हूं, मगर जब उन दोनों ने एक रोज अचानक फरार के मंसूबे पर मेरी राय लेना चाही तो मैं चौंके बगैर न रह सका। बेशक ऐसा मंसूबा तो मेरे दिलो दिमाग में भी पल रहा था, लेकिन जब बिलाल और अशरफ ने पहल की थी तो मैं उस पर सोचे बगैर न रह सका, और उन दोनों के बारे में मुझे अपने तजिये की नफी करना पड़ी थी। बहर तो रात का बेचैनी से इंतजार किया जाने लगा। अवाइल सरमा की सर्द रातें थी और शाम में ही रात का गुमान होता था। ताहम रात की एक मुकर्रा पहर जब अतफाल घर के दरो दीवार पर ठिठुरते सन्नाटे उतरने लगे और हाल कमरे की बत्तियां बुझा दी गईं तो मंसूबे के मुताबिक सबसे पहले अशरफ हरकत में आया। दीगर बिस्तरों पर हमारी उम्रों के लड़के गहरी नींद में मुस्तकर रखते। अशरफ दबे पांव दरवाजे की तरफ पड़ा, बाहर की सुनगुल्ली फिर सीधे हाथ की दीवार की जानिब सरका। मैं और बिलाल अपने कोने वाले बिस्तरों पर दुबके उसकी हरकत और सकनात को बगौर देख रहे थे। वो एक खिड़की के करीब क्या जहां आईनी सलाखें नस्ब थी। बाद में पता चला वो और बिलाल चंद रोज पहले ही से उस पर जोर आजमाई कर चुके थे और अब सिर्फ उन्हें अपनी जगह से उखेड़ने की देर थी। अशरफ ये काम निपटा कर खिड़की के रास्ते दूसरी तरफ कूद गया। हाल में मध्यम रोशनी थी, मेरे चेहरे पर सनसनी के आसार थे और मैं बड़ी हैरत और तशवीश के मिले जुले तासरात के साथ अशरफ की ये मुहिम जोई देख रहा था, जबकि बिलाल के चेहरे पर ऐसे तासरात अनका थे जिस पर मुझे हैरत थी। वो शायद मुतमिन था। मुझे एतराफ करना पड़ा कि बिलाल और अशरफ अमली मैदान के सही मानों में खिलाड़ी थे और मुझे उनसे इख्तलाफ भुलाकर उनसे कुछ सीखना चाहिए था। थोड़ी देर बाद ही अशरफ लौट आया और मेरे करीब आकर सरगोशी में बोला, चलो निकलो बाहर, अब तुम्हारी बारी है, जैसा कहा है वैसा ही करना है, चलो उठो। उसकी कारकर्दगी देखकर मेरे अंदर जोश और जज्बा जागा। मैं फौरन हरकत में आ गया, खिड़की गिराज से बाहर निकला और पतली गली की दीवार से चिपका लड़कियों वाले पोर्शन की तरफ बढ़ा। अशरफ की हदायत के मुताबिक दरवाजे की तरफ देखा, वहां पहरेदार न था। शायद वो मटर गश्त करता हुआ थोड़ी देर के लिए अपने साथियों के पास जा चुका था। मैं फुर्ती के साथ खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की बंद थी। सलाखों को दोनों हाथों से छुआ तो हैरान रह गया। वो ढीली थी, बस उखेड़ने की देर थी। अशरफ की बताई हुई सारी बातें दुरुस्त साबित हो रही थी। उसने बड़ी चावक दस्ती, होशियारी और महारत से उन सलाखों को भी हिला जुला कर ढीला कर दिया था
दरवाजे पर मैंने हल्के से दस्तक दी। सब अशरफ के तयशुदा मंसूबे के मुताबिक हो रहा था। दरवाजा खुला, आबदा का चेहरा नमूदार हुआ। मैं सलाखें उकेड़ रहा हूं, तुम बाहर निकलने को तैयार हो? मैंने आबदा का चेहरा देखते ही सरगोशी की। वो कुछ नर्वस सी थी, बस इस बात में ही सर हिला सकी। मैंने बाहिस्तगी मगर बड़े आराम से 4-5 सलाखें निकाल दी। हाल में खामोशी थी, शायद बाकी लड़कियां गहरी नींद में थीं। दफातन मुझे आबदा के अकब में एक और चेहरा दिखाई दिया। मैं उसे पहचानता था। उसे क्या, बल्कि मैं तो हाल की सारी लड़कियों को ही पहचानता था, मगर जानता सिर्फ आबदा को ही था। मगर उस वक्त आबदा के साथ में किसी शनासा लड़की का चेहरा देखने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, इसलिए बुरी तरह चौंक पड़ा और सरगोशी से आबदा से पूछा, ये क्या? मेरे उस मुख्तसर से तफसार नुमा जुमले में तंबी भी थी। ये मेरी अजीज और करीबी सहेली शकीला है, लेकिन मैं इस वक्त इसे भी, मेरा मतलब है मुझसे कुछ न कहा गया। वक्त कम था। आबदा ने पता नहीं क्यों ये हरकत कर डाली थी। तुम गलत समझे हो शैसी। आबदा मेरा इस्तराब भांप कर बोली। शकीला तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती है, जल्दी कहो, वक्त कम है और तुम बाहर आओ पहले। मैंने कहा, मगर शकीला सामने आकर मुझसे धीमी आवाज में बोली, शहजी भाई अल्लाह आपको कामयाब करे। मुझे आबदा ने सब बता दिया है। आप लोग हमारी भी मदद करना चाहते हैं, लेकिन प्लीज क्या आप शौकत को एतमाद में ले सकते हो? शौकत? मैं ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। फिर मुझे शौकत हुसैन उर्फ शौकी याद आ गया।